This is just the beginning. This show will totally change the way the world looks at him for the right way. I have always wondered the resilience required by a sculptor to go through this whole process. As you can imagine, the cost of material, labor, equipment, logistics, storage, it's unfathomable. The 10 time extra challenge a sculptor has to go through.
And just, I mean, I've known him and we've dealt in his works for 10 years, but never cared to go very deep into the profile, which I read today for the show inauguration. And obviously, seeing his parents, seeing how connected he is to the soil, that's even so beautiful that he's working on a global material. और इतनी चकाचौंध है उनके काम में, पर वो सिंप्लिसिटी जो है उनकी रूरल महाराष्ट्र से जुड़े हुए, वो बहुत ब्यूटीफुल फ्यूजन है एक, कि दोनों तरफ से इनका फ्यूजन है. एक तो काम इनके बाहर से रिफ्लेक्टिव है, पर काम फोर्स करते हैं आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए. सो इट इज़ जस्ट नॉट रिफ्लेक्टिव आउटसाइड, इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव इनसाइड. दैट इज़ द ब्यूटी. And second thing is, steel is often viewed as a global medium, and we all will credit and remember Anish Kapoor when he's here, a stainless steel reflective surface. But here, and India for the longest period has been trying to proclaim or appropriate Anish Kapoor as an Indian artist, although he is very global. He's been in UK for all of his life, and he himself considers himself to be a British artist, I'm sure. But I think we have India's Anish Kapoor now. And the market, the art world will definitely recognize this in times to come. Wishing him all the best. I'm very happy to be part of Ram Kumbhar's beautiful show called Everyday Icons. The very fact that the title of the show itself is so emotional, so honest, and so down to earth. That's the word. And if people are interested, and I hope that everybody is interested, because what you come to the show, the gallery, and see is people that you see on a very daily basis: the milkman, the balloon vendor, the cyclist, the person who's selling, some objects out there in the street. That itself is a mark of this wonderful artist. Actually, I would say that he is so astute as far as noticing the kind of people who go unnoticed in everyday life. And second thing is the very fact of the material that is steel, because it reflects you, it reflects everything that is visible in the world. And I think Ram is basically trying to show everybody what they really are. It's a very sharp critique of the artist in him, that look at your own self, through the work that I create, look at how you are. And that itself is a very potent statement for an artist to make without actually opening their mouth, but through their artwork. And I think among our entire art world of people who have been making steel, who have been using steel as a medium, like right from people like Anish Kapoor, Jeff Koons, blah blah, all these people, I believe Ram is on that lineage, but I think he's more sensitive. He hearkens to the Indian village life, the simplicity of things. And I think that is very important in today's times, where everybody wants to go to a different contemporary level, but he is bringing the rural and the simple life into contemporary existence through his artwork. And I wish him all the best. Thank you. And congratulations to you, and I hope you make more very sincere works, because you are a very sincere person. And congratulations again, and thank you for having me. थैंक यू मैम. राम सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही आपकी आर्ट वर्क की बहुत यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है, बहुत ही तारीफ हो रही है. सर ने भी आपको इंडिया का अनीश कपूर कहा, मैम ने भी आपके काम की काफ़ी तारीफ की. क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का जो आपका आर्ट वर्क बाकी से बहुत अलग हमें भी लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या परिश्रम किया है कितने सालों से आपने, और कैसे अब ये निखर कर सामने आ रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर? नहीं, अभी मुझे एक आर्टिस्ट के लिए देखा जाएगा तो उसको जो आर्ट वर्क बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो उसका मटेरियल, मतलब ब्रश रहे या स्टेनलेस स्टील रहे या मतलब कुछ भी एनी मटेरियल. तो मुझे ये स्टूडेंट लाइफ से ही स्टेनलेस स्टील में रुचि थी, क्योंकि मैं अभी जब फाइनल ईयर में था, मतलब जब पढ़ाई कर रहा था, तब मेरा तकदीर अच्छा था कि मेरे को अनीश कपूर का एग्जीबिशन देखने के लिए मिला. तो वो मैं बैंड्रा में महबूब स्टूडियो में देखा. तो वो टाइम पे मैं शौक हो गया कि हाँ, मटेरियल भी मुझे अच्छा लगा और उसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं. तो उसी हिसाब से मैं स्टेनलेस स्टील जो मटेरियल है, मेरा माध्यम है, उसके साथ जुड़ा रहा. तो वहाँ से मैं वो जो मटेरियल है उसको छोड़ा ही नहीं.
तकरीबन आज तक। तो उसमें भी मैं खुद को खोजता गया, तो वहाँ से मुझे अभी तक ये रिज़ल्ट मिला। ये मेरा अभी का ये जो भी मेरा आर्ट वर्क है वो इसमें आपको दिखाई देगा। बहुत ही रूटेड है, बहुत ही कनेक्टेड है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने भी कहा, सर ने भी कहा। तो इस बारे में बताइए कि आप कनेक्ट करना चाहते हैं हमसे इस तरह से कि जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे अनीश कपूर साहब है, बहुत अलग तरह का उनका आर्ट वर्क है, बहुत ग्लोबल है, उस तरह से भी आप सोच रहे हैं आगे? नहीं, अभी मेरा बचपन तो ग्रामीण लेवल में ही गया है। मैं पढ़ाई करने के लिए बॉम्बे आया, तो बॉम्बे का शहरी जीवन और गांव का जो बचपन में जो मैं शहरी अनुभव है, तो उसको दोनों को मैं मैच करके मैं आगे भी वैसा ही काम करता रहूँगा। सर इस तरह से आइडिया किसी दिमाग में गया इस तरह का अलग अलग वर्क बनाने के लिए? नहीं, वो तो हम लोग जो रेगुलर हम देखो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की नज़र अलग रहती है। एक सेकंड में हम लोग पहचान सकते हैं कि ये इसका क्या हो सकता है, तो हम लोग उसको माध्यम मीडियम उसमें थोड़ा इमेजिन करते हैं कि ये अगर मेरे थॉट में चला जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, तो उस हिसाब से हम डेयरिंग पे काम करते हैं। आर्ट वर्क आपका जो आज है कब से कब तक है, उस बारे में अगर बता सकें? ये मेरा अभी से मतलब आज 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नेहरू सेंटर गैलरी में खुला रहेगा। और फ्यूचर में क्या कुछ फिलहाल सोच रहे हैं आप करने का, कुछ ऐसा? फ्यूचर में तो आगे मेरा चलता ही रहेगा, एग्जीबिशन चलता ही रहेगा। ऐसा अगर गॉड की इच्छा है, अगर चाहिए तो मतलब आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं। और फैमिली के साथ आप पूरे आए हैं, आपके माँ बाप को देखकर कितना प्राउड फील हो रहा है करना था, उस बारे में बताइए। नहीं, माँ बाप तो मेरे पिताजी और मेरे मम्मी ने अभी तक ये शो कभी देखा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लड़का क्या करता है। साल ये बड़े गर्व की बात होनी चाहिए। राम को मैं उसके बिल्कुल शुरुआती उसके आरंभ से मैं जानता हूँ। जब वो पढ़ाई करने आया था हमारे डिपार्टमेंट में, तब से ले जाके आज तक उसके कला जीवन में जो भी पड़ाव आए, तो मैं हर पड़ाव का साक्षी हूँ। लेकिन ये उसका वन मैन शो देखने के बाद बहुत ही ऐसा गर्व महसूस हो रहा है कि ये खुद इसने अपनी एक बुनियाद खड़ी करने की इसकी जो कोशिश है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। इस माध्यम के बारे में तो हर कोई मतलब देखते बराबर ही सबसे पहले माध्यम तुमको चौंका देता है। ये सबसे पहला जो तरीका उसने अपनाया अपनी अलग इमेज बनाने का, ये उसका काबिल तारीफ़ है। दूसरी बात, उसके कलर रंगों की एक अपनी भाषा उसने खोज के निकाली है। बड़े हल्के फुल्के बड़े बड़े आधुनिक तरीके से रंग को उसकी जो मूल पहचान है वो पहचान से हट के उसको त्रिमिति की तहत एक अच्छी परिणाम को साबित कर पाना, ये राम ने बड़ा अच्छा किया है। उसके भी बावजूद मैं कहूँगा कि जीवन की आम गतिविधि उसने जिस तरह से थर्ड डायमेंशन में पेश की है कि ताकि कोई वो किटली लेके वाला आदमी, दूध बेचने वाला, या अलग अलग रिक्शा चलाने वाला आदमी, गुब्बारे में हवा भरने वाला लड़का, या ये जो आम तरीके हैं उसके, ये जनजीवन को छूने वाली जो बात है, ये राम में बहुत ही बाखूबी उसमें भरी हुई है। ये चीज़ ये बड़े गर्व की बात है। इसके बारे में जो जितना कहा जाए उतना कम है। इसके भविष्य के लिए और बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस राम, ये तुम्हारा पहला सोलो शो है। यस। मैं राम को 15 साल से जानती हूँ। हम लोग फर्स्ट ईयर BFA में साथ थे। पूरा फर्स्ट ईयर BFA 2009 से शुरू हुआ, अभी 2025 है। तो राम को स्कल्पचर डिपार्टमेंट में देखा, वो स्कल्पटर है, मैं पेंटर हूँ। तो हम लोग एज स्टूडेंट्स डिस्पाइट द एज डिफरेंस साथ में थे, तो तभी से जानती हूँ। ही इज़ अ वेरी वेरी सीरियस पर्सन, वेरी मेहनती। ऐसे मेहनती बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब गांव से आया और एकदम फोकस जो है उसका कि मैं करूँगा और जो करूँगा बहुत बढ़िया करूँगा, अच्छे से करूँगा, उसने तभी से नहीं छोड़ा है आज तक, जो बहुत मुश्किल है। हमारे साथ काफ़ी लोग साथ में थे, उनका छूट गया है क्योंकि फ़ाइन आर्ट में रहना, वो जो स्ट्रगल रहता है, पैसे तो नहीं मिलते आराम से, और वो जो डेडिकेशन और क्वालिटी वर्क और जो पैशन और कमिटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रहता है, कुछ भी नहीं छूटा फ्रॉम द डे आई हैव नोन टू टुडे, जब उसका पहला सोलो शो हो रहा है। अभी राम हमेशा एकदम सीरियस, अभी मैं उसकी टीचर नहीं हूँ मैं उसकी टीचर नहीं हूँ, नो, हम लोग इक्वल हैं। तो इतना सीरियस आदमी, इतना मतलब दिखने में
लेकिन अगर आप उसका काम देखोगे, इतना जॉय है काम में, बचपना है। आप देखो राम जैसा आदमी, वाटर बबल, ये जो बच्चे मतलब वाटर बबल हम लोग बचपन में करते थे ना, वैसे ब्लो करते थे सोप बबल्स, टेडी बेयर, बलून, ऐसा लगता है आपको ये बट उसके अंदर जो बच्चा छुपा है वो उसके आर्ट में बाहर आ रहा है। लॉट ऑफ जॉय, कलर, और वो जितना सीरियस है, अभी तुम सॉरी तुम्हारा इमेज मैंने थोड़ा ख़राब कर दिया, तुम वेरी प्लेफुल, वो सीरियसली करता है लेकिन काफ़ी प्लेफुल है काम इसका। राम कुंभार, नावात कुंभार आहे म्हणजे मातीशी निगडीत आहे आणि प्रत्येकाला इन्स्पिरेशन हवं असतं. जसं राम इन्स्पायर झाला आहे एक महान आर्टिस्ट बरोबर, मुळातला इन्स्पिरेशन जरी घेतला तरी त्याने त्यातला कुंभारपणा सोडला नाही आहे. प्रत्येक स्कल्पचरमध्ये तुम्हाला राऊंडिटी मिळते. राऊंडिटीयाने तुम्हाला त्याच्यामध्ये डेप्थ आहे, तुम्ही 3 डायमेन्शनली बघता, वन साईड नाही बघत. जेव्हा आपण एखादी गोष्ट बघतो आणि रामने त्याला एक हायली पॉलिश, कुंभारातून तो पुढे वाढत गेला आहे, त्याचं क्वालिटी वाढत गेली आहे. पण राम जसा म्हणतो ना आपण, राम एक पत्नी, पण हा राम कामामध्ये एकदम एकनिष्ठ आहे आणि त्याने त्याच्या कामातून स्वतःला सिद्ध केलं आहे की स्वतःचा एवढा मोठा शो करणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे की आपण फॉलो करते कुणाला, त्याच्यात अडकून न राहता त्याने स्वतःची एक वेगळी स्टाईल निर्माण केली. आणि मुळात आपल्या जीवनातल्या ज्या रोजच्या गोष्टी आहेत त्याला आपण कसं बांधून ठेवू शकतो हे रामने इथे दाखवलं आहे आणि हेच त्याचं यश आणि कर्तृत्व आहे. मी तुला पुढे जाण्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा देते. थँक्यू मॅडम. रामचं आतून देखील सुरू होते, कसं वाटतं का पण असं पहिल्यांदा असं फॅमिली सुरू होते? नाही हे म्हणजे चांगलं वाटतं आहे, आनंद वाटतं आहे. माझं स्वतःचं फर्स्ट टाईम एकल प्रदर्शन होतं आहे आणि आतापर्यंत माझी एक्झिबिशन झालेली आहे, पण ग्रुपमध्ये मी केलेली आहे. पण सध्या फर्स्ट टाईम एवढं मी डेअरिंग केली की स्वतःचं सोलो एक्झिबिशन भरवण्याची. एक्झिबिशन वेगवेगळं दाखवले तुम्ही, सायकलवर किंवा दूध नेणारा मुलगा वगैरे काय काय व्हरायटी काय काय दाखवली म्हणजे त्याच्यामध्ये? नाही, याच्यामध्ये सगळीच कामं आहेत. प्रत्येक याचा वेगवेगळा सब्जेक्ट आहे. हा बलून रिक्षावाला आहे, ते तिकडं दूधवाला आहे, तिकडं वॉटर बबलचं काम आहे, टेडी बियर आहे, पण आणखीन वॉलची पण अनटायटल कामं आहेत जे की कंपोजिशनमध्ये आहेत. म्हणजे तुला अनटायटल तुम्ही तो वेगळा पण आहे. डोक्यात जर तुम्ही पहिलं ठरवता की अशा रीतीनं आपल्याला करायचं किंवा त्याच्यामध्ये काहीतरी असा वेगळा विषय असतो किंवा तुम्ही काहीतरी सांगू शकता वगैरे पब्लिकला की याच्यामागे काहीतरी कारण आहे? नाही, कॉमन सब्जेक्ट आहे ते, याच्यावरती काय सांगण्यासारखं असं काय नाही. तो समजून घ्या, बघितलं समजतं. कधीपासून सुरू आहे, कधी पण समजा एक्झिबिशन? ही 9 तारखेपासून 9 डिसेंबरपासून ते 15 डिसेंबरपर्यंत ओपन आहे नेहरू सेंटर आर्ट गॅलरी. वही तुम्ही काय सांगाल सरांविषयी? तुम्ही काम पाहिलं असेल, तुम्ही काय सांगता असेल करायचं असं काही सांगता की सजेशन देता येईल वगैरे? हो, सजेशन देते ना, कोणतं काम चांगलं आहे कोणतं नाही काय. तुम्ही आयडिया काय देता येईल त्यांना वगैरे कसं? हो, थोडीफार देते आयडिया. असंही म्हणजे 3-4 जणांनी सांगितलं किंवा जास्त जणांनी सांगितलं तर समजतं ना की काम कसं आहे आपलं, काय चुकतं त्याच्यामध्ये. मग ते सांगितलं की ते करतात त्या हिशोबाने, पण त्यांना सांगायची गरज पडत नाही सहसा तरी, चांगलंच करतात. घेतात डोक्यात घेतात मनातच हुशार आहे पोरगा, माझं मनातच हुशार आहे. तर खायला भेटली नाही पण कळमला जाऊन उपाशी राहून सगळं शिक्षण शिकलाय ती. उपाशी राहून कळमला जाऊन सगळं शिक्षण शिकलाय ती, स्वतःच्या पायावरच उभा राहिली. या आता पण एवढं मला समाधान वाटायला लागले ना, स्वतःच्या पायावर उभं राहिली तेवढं समाधान वाटलं. तुम्हाला म्हटलं का कसं त्यांचं कसं घडले, काय घडले? ना आम्ही पहिल्यापासून जिद्दी होता, कष्टळ होता आणि मुंबईला आल्यापासून जास्त जिद्दी झाला. आणि त्यांच्या कलागुणाविषयी वगैरे पहिल्यापासून त्यांनी काय आयडिया कशी डोक्यात घ्यायचं किंवा कसं बनवायचं? हो, इथं आल्यापासूनच शिकला तो का. थँक्यू. तुम्ही सांगा. थँक्यू सर.